Dear students, let us discuss few illustrations on motion under gravity. First question says, a ball is thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower, returns to earth in 6 seconds. Find the height of the tower. Okay, so the question is clear. हमारे पास एक टावर है, उस टावर से एक बॉडी को हमने ऊपर फेंक दिया with a speed of 9.6 मीटर पर सेकंड. उस बॉडी आफ्टर 6 सेकंड वापस ग्राउंड में आ चुका है. Alright, fine. So अगर ऐसा है तो we need to calculate the height of the tower. That is a question. So given values आप एक बार given values देखते हैं. Given value में देखो, सबसे पहले हमें ये दे रखा था with what speed it was thrown, isn't it? It was thrown with a speed of 6 meter per second in the upward direction. That is why आप देख सकते हैं 19.6 plus लिखा हुआ है. Acceleration due to gravity downward है. Okay, so इसको आपने इसलिए हमने इसको minus of 9.8 लिखा हुआ है and time taken given था that was 6 और हमें calculate करना है height of the tower. इसका अगर आप एक बार डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, this is a diagram and see this is the reference. Okay, जहां से हमने अपना बॉडी का जो मोशन स्टार्ट किया हुआ है, so that has to be the reference. So this was the reference. So ये रेफरेंस है हमारा. Okay, so इधर से जो भी रीडिंग अपवर्ड, पॉजिटिव, डाउनवर्ड, नेगेटिव. फाइन. सो दैट इज द थिंग. सो हम इसके लिए यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. सो दैट वाज दिस वाज द डायग्राम. और आप देखिए वो आपका बॉडी इस तरफ फेंका गया है. ओके, ऊपर गया, इधर रेस्ट पे आ गया है और फाइनली वापस आके इधर गिर गया. ऑलराइट, सो ये एंटायर ट्रिप के लिए जो टाइम लिया हुआ है दैट इज 6 सेकंड. ऑलराइट, नाउ हम इसमें चूज करेंगे इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. ऑलराइट, इसमें हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले तो दिस इज द रेफरेंस और रेफरेंस से नीचे की तरफ आया हुआ है थ्रू अ हाइट ऑफ h. ऑलराइट, सो इधर मैंने कैपिटल H यूज किया हुआ है, इधर स्मॉल लेटर h लिखा हुआ है, सो कैपिटल H. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिया माइनस ऑफ h. ऑलराइट, इक्वल्स u का वैल्यू 19.6 है, टाइम गिवन था 6 इक्वल्स हाफ ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की जगह मैंने पुट किया minus of 9.6 into 6 square. From here I am getting the value of height h as 15.8 meter. Alright, so इधर मैंने already minus put किया हुआ था, that is why I got the value as 58.8. अगर मैंने h का value minus h put नहीं करते, खाली h put कर लेते, then I should have got the value as minus of 58.8, which means the displacement is in the downward direction from the reference. Okay, let us now discuss the second illustration. So second illustration says a ball is thrown vertically upward with a speed of 20 meter per second from the top of a multi-storied building. The height of the point from which the ball was thrown was 25 meter from the ground. Okay, so this question has got two parts. Part 1 is asking for how high the ball will rise, and second part asking for how long this ball is going to be in air before it hit the ground. यानी कि बिल्डिंग का ऊपर से फेंका है ना, 25 मीटर हाइट से फेंका और ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उस हाइट को क्रॉस किया और नीचे आकर के ग्राउंड में टच करने का टाइम कितना लगेगा, दैट इज हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू बी इन द एयर. सो हम एक बार इसका स्केच देखते हैं, इसका स्केच कैसे हो सकता है. सो let this be the building. ओके, सो इस बिल्डिंग से आपने बॉल फेंका. ऑलराइट, सो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक यू टर्न लेकर के नीचे आया. ओके, सो दिस हाइट इज गिवन एज 25. ऑलरेडी दिस वैल्यू इज गिवन. सो फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है what could be this height, what could be this height, the maximum height. okay, so हमें ये बात पता है अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, so now we are going to consider the journey from A to B. okay, so A to B journey में
जो height attained है, let it be capital H. So that is what mentioned over here, capital H. Now let me consider the equation v square equal to u square plus 2s for the trip of the body from A to B. ऊपर पहुंच गया. Okay, so B is the final position. Final position में velocity equal to 0 है. So that is why आप देख सकते हैं मैंने v का वैल्यू इधर 0 पुट किया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका था, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके थे, दैट इज व्हाई इट इज प्लस 20 स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 20 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं मैंने माइनस ऑफ 9.8 लिया हुआ है बिकॉज आपको पता है ये बॉडी जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगे दैट विल बी एक्सपीरियंस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज माइनस ऑफ 9.8 इंटू अननोन वैल्यू है तो मैंने h लिख दिया. ऑलराइट, नाउ इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आपको पता है I am going to take this 20 towards the left, so it's going to be minus of 20 square equals to minus of 2 into 9.8 into h. Minus and minus cancel हो जाएंगे, you will get the value of h as 19.6 meters. Okay, so this was the first part they asked कि what will be the maximum height attained by the body from the top of the tower. Okay, so total height from the ground अगर पूछा जाए, I repeat, total height from the ground अगर पूछा जाए, so that is going to be 25 plus 19.6 it is going to be. So that is the total height from the ground. ये जो height है that is from the top of the tower only, like multi-story building से 19.6 मीटर ऊपर है. Okay, second part हमसे ये पूछा था कि कितनी देर तक ये जो बॉडी है वो आपका ग्राउंड में रहेंगे. Okay, fine. So इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, again I am going to consider the total. Once again I am going to create that sketch for you. Let this be the multi-storied building and let this be the ground. So body started its trip from here, ऊपर गया और वापस इधर से इधर पहुंच गया. So this is the total path. So देखिए, this was the initial position. Let me call it as I, and this is the final position. Let me call it as F. So आप देख सकते हैं total displacement of the body is this much in the downward direction. Initial position towards the final position. So this is the origin. I would like to call it as O. So the total displacement in this case I can say it as minus of 25 meters. Keeping that in mind, I am selecting this equation S equal to ut plus half at square. ओके, इधर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमें पता है कितना, माइनस ऑफ 25. इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितना, प्लस 20. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है इट इज माइनस ऑफ 9.8. ये सारे सब्स्टिट्यूशन मैंने किया, आप देख सकते हैं. एस का वैल्यू मैंने माइनस 25 लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी मैंने 20 लिख दिया, टी अननोन वैल्यू है हम फाइंड आउट करने वाले, वो एस टी इधर लिख दिया, half of acceleration value minus of 9.8 into t square. Okay, now what I am going to do is I am going to take this all values, that means this one as well as this one towards the left. So right hand side में सिर्फ 0 बच जाएंगे, left hand side में आते वक्त आप देख सकते हैं ये half of 9.8 t square पॉजिटिव हो गया, minus of 20 t नेगेटिव हो गया और left hand side में ऑलरेडी minus 25 था. Okay, अब आपके सामने ये जो इक्वेशन है this is of the format, आप देख सकते हैं it is of the format ax square plus bx plus c equal to 0, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है. ओके, सो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ द फॉर्मेट ax square plus bx plus c equal to 0, आप जानते हैं उसका सॉल्यूशन आता है x equal to minus b plus or minus under root of minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. All right, this is how we get that. So there was a printing mistake I think. So this is the solution for x. So इस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हमारा t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t का वैल्यू क्या आ जाएंगे, माइनस b. इधर आप देखिए कोएफिशिएंट का केस में अगर देखे जाए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आ गया आपका 9.8 by 2. b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है माइनस ऑफ 20. c का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 25. ओके, सो a b एंड c ये आ चुका है. ओके, सो आप देख सकते हैं माइनस ऑफ b
plus or minus under root of b square, okay, minus 4 times a into c upon 2a. All right, now solving this equation I will get the value as t equal to 4.37. आप जानते हैं इसको सोल्व करोगे आपको दो वैल्यू मिलेगा, उसमें से एक पॉजिटिव होंगे और दूसरा नेगेटिव होगा। टाइम का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आप नहीं ले सकता, सो यू विल चूज द पॉजिटिव वैल्यू ओनली एंड दैट सेलेक्टेड वैल्यू इज दिस वन। सो t का दो वैल्यू होगा, सो उसमें से आप पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू होंगे 4.37. So now we calculated the total height up to which the body was able to reach, and we calculated the total time duration also. Okay, our next illustration is we are having a balloon and it is ascending at the rate of 9.8 meter per second. Now once the balloon was at a height of 39.2 meters from the ground, a food packet was dropped from the balloon. Now the question is, after what time and with what velocity will the food packet touch the ground? Okay, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले you must know few things. See, let this be the balloon. Okay, let this be the balloon. So let this be the basket attached to it, something like this. Now in the question it is mentioned that this is moving up with a speed of 9.8 meter per second. ध्यान रखना इस पे रखा हुआ सारी चीज, चाहे वो फूड पैकेट हो, चाहे कोई बंदा इधर खड़ा हो, व्हाट्स और इट में इससे एसोसिएटेड सारे बॉडी एट प्रेजेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन में ये बोला गया है फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द balloon once the balloon was at a height of 39.2 meters. That means, देखिए, let this be the ground. Now let this be the position of the balloon right now. Okay, now this is at a height of 39.2 meters. इधर से फूड पैकेट को ड्रॉप करने का मतलब ये हो गया, सी एज आई टोल्ड, इस पे एसोसिएटेड जितनी भी जो बॉडी यानी कि इस बैलून के अंदर रखा हुआ सारे बॉडी का स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ड्रॉप करने का मतलब इसमें जो बंदा खड़े थे उसने अपने हाथ में पकड़ा, उसके बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। बट ध्यान रखना जब वो बंदा छोड़ने से जस्ट पहले भी 9.8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, सो आपका फूड पैकेट का वेलोसिटी जब फूड पैकेट को ड्रॉप किया था उस टाइम उसका वेलोसिटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब डिटैच हो चुका है। नाउ ये बॉडी, this body is under the influence of gravitation, acceleration due to gravitation only. So now this body is experiencing acceleration a in the downward direction. अब आप देखिए, this body will execute the same motion as a body is thrown up with a speed of 9.8 meter per second from a height of 39.2 meters. So body 9.8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, कुछ पर्टिकुलर हाइट में आकर के रुक जाएंगे, उसके बाद ये वापस आकर के ग्राउंड में गिरेगा। ओके, ये बैलून अपना ऊपर चलते जाएगा। ऑलराइट, उसके पीछे रीजन क्या है कि जब बैलून से हट गए थे उस टाइम बॉडी का वेलोसिटी कितना था 9.8 मीटर पर सेकेंड। नाउ बैलून से हट गया, सो नाउ इट इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वी कैन कंसिडर it is similar to that of a body thrown upward with a speed of 9.8 meter per second from a height of 39.2 meters. All right, so we are going to consider that case over here. So the body is thrown with a speed of 9.8 meter per second and it was thrown from a height of 39.2 meters. अब हमें ये calculate करना है with what speed it is going to hit the ground. That is the first thing. Okay, उसके लिए मैं use करूँगा equation v square equal to u square plus 2s, v square equal to u square plus
2 as। फाइनल स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल स्पीड हमें पता है, दैट इज 9.8 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 9.8, और आपको पता है आपका बॉडी को इधर से फेंका था और इधर से आकर के वापस ग्राउंड में पहुंचा है। दैट मींस रेफरेंस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने माइनस ऑफ 39.2 यूज किया हुआ है। ओके, इसको सोल्व करते वक्त v स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिलेंगे 864.36, इसमें से v का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड थिंग ये था आफ्टर व्हाट टाइम इट वाज टचिंग द ग्राउंड। सो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, 29.4 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ग्राउंड में टच करने से जस्ट पहले it should have been moving in the downward direction, so final velocity is minus of 29.4। so इस ये 29.4 यानी कि minus of 29.4 मीटर पर सेकंड velocity आने में कितना टाइम लगा, the same is going to be the time after which the food packet should have touched the ground as well। okay, उसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वेशन v equal to u plus 80। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है माइनस ऑफ 29.4, इनिशियल वेलोसिटी वाज प्लस 9.8, एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 9.8। इसमें से मुझे t का वैल्यू मिलेंगे सोल्व करते वक्त, t as I will get t equal to 4 second। Let us now discuss our next illustration। This illustrations convey very important concepts, so you must be very careful while during this discussion। You can see that in the beginning itself you can see some green colored explanations over here, so this explanation itself is an introduction to the solution of this question। okay, so the question says, the question is very simple, but answer you might experience is a bit long, as I told, is a very important question। so the question says, a stone falls from a cliff and travels 24.5 meter in the last second before it touches the ground। what will be the height of the cliff। यानी कि आपने एक स्टोन जो है एक क्लिफ से ड्रॉ किया है और ग्राउंड में टच करने से 1 सेकंड पहले, यानी कि इन द लास्ट 1 सेकंड इट ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर। सो अगर ऐसा है, so what is the height of the cliff? so that is a question। okay, so इस क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अब ये देखो, आप इमेजिन करो आपके पास एक बॉडी है, उसको आपने ग्राउंड से उसको फेंका है। ओके, ये बॉडी ऐसे एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, उसके बाद आपको पता है कि वापस आएंगे और ग्राउंड में हिट करेंगे वापस आकर के। नाउ आप अज्यूम करो ये ऊपर तक पहुंचने में टाइम लगा इसको t इक्वल टू 3 सेकंड। हमें पता है ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम है, सो अब वापस आएंगे कितने टाइम में, 6 सेकंड के अंदर वापस आएगा। सो आप इमेजिन कर लो, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट 1 सेकंड एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल इन द थर्ड 1 सेकंड, सेकंड 1 सेकंड, एंड दिस इज ट्रैवल इन द थर्ड 1 सेकंड, यानी कि t इक्वल टू 3 हो गया। सो इधर t इक्वल टू 0, इधर t इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, अब ये 4 सेकंड हो गया, ये 5 सेकंड। ध्यान रखना डिस्टेंस ट्रैवल इन 0 to 1 it will be same as of distance travel in 5 to 6। distance travel in 1 to 2 it will be same as of distance travel in 4 to 5, and distance travel in 2 to 3 it is going to be distance travel in 3 to 4। similarly जिस स्पीड से ऊपर जा रहे थे और उसी स्पीड से ये नीचे आ रहा होगा, similarly जिस स्पीड से इधर ऊपर जा रहे थे और उसी स्पीड से ये नीचे आ रहा होगा। नाउ जिस स्पीड से आपने इसको फेंका है उसी स्पीड से बॉडी वापस आकर के हिट करेंगे, एंड दिस इज द कांसेप्ट व्हाट वी मस्ट नो बिफोर अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन। सो हमारा जो क्लिफ से जो बॉडी को गिराया गया है वो बॉडी लास्ट 1 सेकंड, ओके, लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो लेट दिस बी द क्लिफ, ओके, लेट दिस बी द क्लिफ। सो लास्ट 1 सेकंड में बोला गया है it had traveled a distance of how much, I think 24.5, yes 24.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। ओके, सो इमेजिन कर लो
जैसे आपने एक बॉडी को u स्पीड से फेंका और ट्रैवल किया 24.5 मीटर इन द फर्स्ट 1 सेकेंड। सो हमें कैलकुलेट करना है with what speed you should have thrown the body so that in the first 1 second it traveled a distance of 24.5 meter। ओके, उसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वेशन s equal to ut plus half at square, s equal to ut plus half at square। ऑलराइट, सो हमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है डिस्टेंस ट्रैवल इज 24 और u स्पीड से फेंका है, हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन। टाइम का वैल्यू हमने फर्स्ट 1 सेकंड, राइट? सो t इक्वल टू 1, इधर भी t इक्वल टू 1 पुट करेंगे। आपका बॉडी को ऊपर फेंका गया है विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ओरिजिन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस ऑफ 9.8 मैंने इधर पुट किया है। ओके, इसमें से मुझे मिलेगा u का वैल्यू, उसको सोल्व करते वक्त आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ u एज 29.4 मीटर पर सेकंड। ओके, सो आपका जो क्लिफ से ड्रॉप किया हुआ बॉडी कितना स्पीड से आकर के ग्राउंड में हिट करेंगे? 29.4। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये 29.4 कैसे कैलकुलेट किया हुआ है ना। अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी कंपैरेबल है। सो आपने ऊपर के तरफ 29.4 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तब जाकर के फर्स्ट 1 सेकेंड में आपका बॉडी 24.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। इसका मतलब आपका जो बॉडी हिट ग्राउंड में हिट करते वक्त भी उसका स्पीड कितना है? 29.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मैं ये कैलकुलेट करूंगा जब आपने अपना क्लिफ से एक बॉडी को ड्रॉप किया है और वो आकर के ग्राउंड में 29.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हिट किया। ओके, सो अगर ऐसा है क्लिफ का हाइट कितना है? फाइन। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x। फाइनल स्पीड हमें पता है कितना? 29.4 ड्रॉप किया था, दैट इज व्हाई इनिशियल वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। सो ये पूरा टर्म इधर गायब हो जाएंगे। ऑलराइट, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन आपको पता है इट इज माइनस ऑफ 9.8 और h का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, h का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, h का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ 44.1 मीटर। एंड एज यू ऑल नो हमारा रेफरेंस यानी कि क्लिफ से, दिस वाज द क्लिफ, देख लीजिए दिस वाज द क्लिफ एंड दिस वाज द रेफरेंस। सो रेफरेंस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका h का वैल्यू मिलेंगे, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग दिस नेगेटिव साइन। वो मैंने इधर स्टेटमेंट का फॉर्म में भी दिया हुआ है, द नेगेटिव साइन शोज द बॉडी ट्रैवल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। ये नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस होता है। ओके, सो अगर हाइट पूछा जाए तो it is exactly as 44.4 meter. I hope you got it. Dear students, our next illustration is two balls are thrown simultaneously and the balls are named as A and B. So capital A was thrown upward with a speed of 20 meter per second from the ground and capital B was thrown vertically downward from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of projection of A. Okay, now at what height from the ground they are going to meet each other? That's a question. So simply meeting means two bodies are reaching at the same position at a particular instant of time. At a particular instant of time. That is meant by meeting. Okay, so condition ये है meeting का, दोनों बॉडी का पोजीशन सेम होना चाहिए और टाइम दोनों का कॉमन वैल्यू होगा। ओके, सो हम अज्यूम कर लेते हैं ग्राउंड से स्मॉल लेटर h हाइट पे ये मीटिंग हुआ है। ओके, आई रिपीट, ग्राउंड से स्मॉल लेटर h हाइट पे ये मीटिंग हुआ है। ओके, नाउ अगर हम बॉडी A का मोशन कंसीडर करें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस इक्वेशन में बॉडी A का मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो बॉडी A को आपने फेंका था विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, so 20 into t plus half of acceleration from the origin downward होगा, that is why minus of 9.8 into t square. Let me consider this as equation number 1. Now
बॉडी बी का मोशन कंसिडर कर लेते हैं। अगेन द सेम इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका पता है आपका बॉडी नीचे आ चुका है, ओके सो नीचे आ चुका है, तो हमें नहीं पता कितना नीचे आ चुका है। सो दिस इज द सिचुएशन। अगर देखो ए को इधर से फेंका था, इधर पहुंच गया, बी को आपने इधर से फेंके थे, इधर पहुंच गया। सो टोटल हाइट 40 है, हम अज्यूम कर रहे हैं h हाइट पे आकर के मीटिंग हुआ है। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, 40 माइनस h होंगे। बट बॉडी बी के लिए फ्रॉम द ओरिजिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज वाई आप देख सकते हैं वंस आई कंसीडर द मोशन ऑफ बी, मैंने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू माइनस ऑफ 40 माइनस h लिया हुआ है। आपने नीचे फेंका था विद द सेम स्पीड, यानी कि 20 से नीचे की तरफ फेंके थे, दैट इज व्हाई इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ 20 into t plus half of acceleration, of course it has to be minus of 9.8 only into t square. Let this be equation number 2. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सो 2 का वैल्यू क्या था, 2 का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ऑफ 40 माइनस h थे, माइनस ऑफ 40 माइनस h, माइनस इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में खाली h था, इसकी जरूरत नहीं है इधर, इक्वल्स टू आप देख सकते हैं माइनस ऑफ 20t प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ 9.8 t स्क्वायर, ऑल राइट, माइनस ऑफ, ये देखिए इक्वेशन नंबर का राइट हैंड साइड को एज इट इज उठा के इधर डाला हुआ है। ऑल राइट, इसको सोल्व करते वक्त मुझे मिलेगा t इक्वल टू कितना, 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड मुझे मिला। ओके सो आई एम गोइंग टू मार्क दैट एज इक्वेशन नंबर 3। अब ये t का वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करे चाहे 2 पे पुट करे, आपको h का वैल्यू मिल जाएंगे। आई ऑप्टेड इक्वेशन नंबर 1। ओके सो देखिए, substituting the value of t from 3 in this equation, h equals 20t plus half of minus of 9.8 t square, I will get the value of h as 15.1 meter. I hope you got it.